करते आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमना है। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? मैम बिल्कुल सुना जी, कैसे हैं आप? हेलो, सर यस सर। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, तो सुना Yeah, as I can see, या प्लीज हाँ सर। प्लीज यू कैन कंटिन्यू. As I can see, sir, your recent purchase is a storage set, parent handle cushion set, new tricycle. How can I help you regarding this order, sir? Actually, ma'am, I just want to know regarding the Flipkart, what is the difference between a plus member and a normal member of Flipkart? Thing is, sir, plus members and normal member has some offers differentiate. Okay. For normal members, sales or offers start from normal, just what is the date of sale. And for the plus members has a privilege for the sales few hours ago. And what is the eligibility that a normal member will get a plus member based on purchasing, or something else is there? Sir, if you have 200 super coins, you can easily convert non-plus member to the plus members of Flipkart. Okay. So I hope as per my account, I am a plus member. Am I right? Yes. Yes, sir. And you can see the transaction and the purchasing which I used to do from the Flipkart. Yes. If you can see. Okay. Yes. On yearly basis, I can purchase more than around 50 to 80,000 rupees from the Flipkart. Okay. All right, sir. All right. Sir, I just want to know what is the benefit for purchasing that lots of amount of product from the Flipkart if Flipkart is not able to deliver me the product on time. I'm really sorry for the inconvenience, sir, but could you say for which product you are saying? Yes, I am saying for that bicycle only. What is the estimated date for the delivery of that bicycle? Can you Just see give me it? some time. Can you see it? You see the initial date. You see the initial date of delivery of that bicycle. What was the initial date? And after that, what was the modified date? And now, what is the current status? Sir, give me some time so that I can check. Yeah, please check it. Sir, as I can see, the promise date of the delivery was 9th of August and it breached. The new promise date is 12th of August. It was 9th of the August, and then further Then the date was 12th of the August, and then again Yes. now it is 13th of the August. Am I right? No, sir. The new date is still not updated. As I can see, the No, promise ma'am, I date have is still got the message. Right now, I have Okay. got the message that we can't able to deliver your product. Sorry for the inconvenience. The product will be delivered you by 13th of the August before 7 p.m. Okay. Okay. So, ma'am, I hope, Yes. I hope you are also a daughter. Okay. Actually, I was bought this product for my daughter, and her birthday is on 12th. That is on today itself. Okay. So, being a father, I have ordered this bicycle for my daughter on her first birthday. And the product is not delivered. So what will be the benefit that if I will get the bicycle tomorrow? As you can see that 9th of the August, it was a promise date that we will deliver. I can understand the situation. Yeah, it may be delayed by 24 hours. It may be delayed by 48 hours. But how it's possible that it is taking a time of 5 days, that is 24 into 5. It's more than 120 hours. What type of services you have, ma'am? I'm really sorry, sir. I understand how you may feel. But the thing is, sir, if you got any message from the logistic courier that it got delayed from the logistic courier partner and it's still not updated in system. मैम, आप मुझे ये बताइए, लॉजिस्टिक पार्टनर मैंने सेलेक्ट किया है मैम. हैव आई चूजेस दैट वेंडर? नॉट ना मैम. मैंने तो लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं ना, आपने चूज किया ना. बीइंग अ फ्लिपकार्ट रिप्रेजेंटेटिव, आपने चूज किया ना अपने कुरियर पार्टनर को. आपने उसका वेंडर एवोल्यूशन किया होगा ना कि हाँ ये मेरे लायक है या नहीं है, क्योंकि लॉट्स ऑफ वेंडर है मार्केट में मैम. तो आपने कुछ तो क्वालिटी देख करके उसको चूज किया होगा. इतने महंगे प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ मैम. आप देखो एक बार हिस्ट्री देखो, आप ऑर्डर हिस्ट्री देखो आप खोल करके मैम कि क्या ऑर्डर हिस्ट्री है मेरी. लेकिन प्लस मेंबर होने के बावजूद, इतने ऑर्डर करने के बावजूद आप लोग कस्टमर का कोई वैल्यू नहीं देते हो. नॉट अ सिंगल. आप खुद सोचो, अगर आपकी बेटी हो और उस बेटी का पहला बर्थडे हो मैम, आप समझो, किसी चीज को समझो मैम, कितनी इमोशनल अटैचमेंट होती है. और आप कोई चीज ऑर्डर की है अपने बेटी के लिए और वो आपका पहला बर्थडे है बेटी का और वो ऑर्डर नहीं आया आपको. बीइंग अ मॉम, सोचो आपको एक माँ की तरह की क्या दर्द फील होगा आपको. बिल्कुल सर, मैं पूरी तरीके से समझ सकती हूँ आपको कैसा फील हो रहा है. आपकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था और आपको गिफ्ट देना था, वो भी आप नहीं दे पाए. अभी मैम केक कटने का टाइम है. सारे मेंबर आ चुके हैं यहाँ पे, सारे बच्चे आ चुके हैं मोहल्ले के, और ये अब कह रहा है कि पापा ने बर्थडे में दिया क्या. मैं क्या ये मैसेज दिखाऊं उसको मैम कि ये देखो तुम्हारा बर्थडे कल सुबह मॉर्निंग में आएगा, शाम को 7 बजे आएगा. I'm really sorry, मैं sir, स्क्रीनशॉट प्रिंट करके पेज का निकाल करके उसके केक पे नहीं चिपकाऊंगा ना, या उसको एज ए सर्टिफिकेट नहीं दूंगा ना कि बेटी ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बाइसिकल लिया है, फॉर योर एविडेंस. अगर आप चाहें तो मैं आपका जो कंसर्न है आपके बिहाफ पे विशमास्टर की रिगार्डिंग एक कंप्लेंट कर सकती हूँ कि आपको ऐसा हुआ. डेट तो अभी भी 12th शो कर रहा है, बट आपको प्रोडक्ट नहीं मिला और आपको मैसेज रिसीव हुआ कि 13 को मिलेगा. मैम देखो मैम, आप जो कह रहे हो मैम, आई कैन अंडरस्टैंड यू बीइंग यू आर डूइंग अ जॉब. आप जो जॉब कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप वो चीज बस एक कंसर्न रेज कर सकते हो. हाँ सर. ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको ब्लैकलिस्ट करो. ऐसे डिलीवरी पार्टनर को तो आपको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए. ऐसा मैम, मैंने कोई ट्रेन तो ऑर्डर नहीं किया था ना.
कोई ट्रेन का ऑर्डर नहीं किया था कि इसको ट्रेन को बनने में इतना टाइम लगेगा। अगर मैं ट्रेन को भी ऑर्डर करूँ, इट कहाँ पे है मैम? फारूक नगर। इट इज इन गुड़गांव। गुड़गांव से जो डिलीवरी वाला एरिया है जहाँ ये डिलीवरी होगा, कितने किलोमीटर है मैम? 1328 किलोमीटर है। ऑर्डर देखो किस दिन का है मैडम, फारूक नगर में। ऑर्डर देखो मैम किस तारीख का है। अगर वो 1328 किलोमीटर 15 दिन में ट्रेवल करके जाएगा क्या मैम? कोई बाइक चला के जा रहा है क्या उसको डिलीवरी देने के लिए? सर मैं पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी। मुझे भी खुशी होती है अगर मैं आपको सहायता कर पाती। मैं कंप्लेन रेज करने के सिवाय अगर आप चाहे तो विस्मास्टर की जो कंप्लेन है वो मैं कंसर्न टीम के पास रेज कर सकती हूँ, पर इसके रिगार्डिंग मैं और क्या कर सकती हूँ? 13 अगस्त का जो टाइम आपको दिया गया है, वेट करने के अलावा कुछ और नहीं तो हो पाएगा। नहीं मैम, तो आप खुद सोचिए ना मैम, ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ यू कैन सी चीटिंग विद द कस्टमर। ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग है ना। और मैं कह रहा हूँ आप डिलीवरी डेट किस बेसिस पे देते हो? आप जो फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी डेट देता है वो सारा चीज कैलकुलेट करता है ना, एस्टिमेट करता है ना कि हाँ ठीक है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, मेरी लॉजिस्टिक इतनी टाइम में मूव करेगी, इतना किलोमीटर है, डिले हो सकता है। डिले का मतलब है 2 डेज, 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज समझ में आता है कि डिले ठीक है, कुछ अनसर्टेन एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, कुछ दंगा हो गया, फसाद हो गया, बाढ़ आ गया तो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, आई कैन अंडरस्टैंड है। लेकिन ना तो अभी कोई दंगा है, ना कोई फसाद है, ना कोई बाढ़ आया हुआ है। तो ऐसा कौन सा मतलब मैंने हैवी प्रोडक्ट मंगा दिया जिसका कि वेट ज्यादा है, या उसको ले जाने में कोई मतलब क्या कहते हैं पुलिस से या कोई क्या कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या कोई सेल टैक्स डिपार्टमेंट से उसे कुछ अप्रूवल लेना है, कुछ ई वे बिल बनाना, व्हाट इज दिस मैम? मैं समझ पा रही हूँ, मैं पता है समझने के बाद भी आपका प्रोडक्ट तो आपको आज नहीं मिलेगा। आपका डॉक्टर की बर्थडे था, वो तो स्पॉइल हो गया, आपको अपनी गिफ्ट नहीं दे पाए। बट जो कि मैं कर सकती हूँ सर, वो विस्मास्टर और लॉजिस्टिक टीम के अगेंस्ट एक कंप्लेन रेज कर सकती हूँ ताकि फ्लिपकार्ट का जो कंसर्न टीम है उसको देखे और कोई एक्शन ले। मैम कंप्लेन मत करो, उसको ब्लैकलिस्ट करो मैम। कंप्लेन से नहीं होगा मैम, ब्लैकलिस्ट करो। ऐसे डिलीवरी पार्टनर को तो ब्लैकलिस्ट कर दो। शुक्र है कि आप लोग मेडिसिन और ये सब डिलीवर नहीं करते हो। आप लोग ला रहे हो, कोई प्रोडक्ट ला रहे हो, लेकिन जो एसेंशियल मेडिसिन है शुक्र है कि आप लोग डिलीवर नहीं करते हो। अदरवाइज कोई पेशेंट वो करे ना, ऑर्डर करे ना, तो बंदा मर के चला जाएगा वो तो, जब तक वो मेडिसिन पहुंचेगी। सर बात ऐसी है ना कि पॉलिसी तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तो ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो कर सकते हो है कंसर्न टीम के पास आपका जो कंसर्न है वो हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो लोग कुछ एक्शन ले। मैम आप ना अपने सीनियर को ट्रांसफर करो मैम, जो सुपर सीनियर है ना, आप उसको ट्रांसफर करो कॉल में। सर सीनियर भी सेम रेजोल्यूशन देगा जो मैं प्रोवाइड कर रही मैम हूँ। आपकी बात सही है, उस सीनियर को पता भी तो चलना चाहिए कि नीचे वाले क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो बैठा है, सर, आप सीनियर है, लाइन पे पैसा ले रहा है, ही ऑल्सो हैव टू नो था ना कि नीचे क्या प्रॉब्लमें होती है। हाँ ठीक है सर, मैं आप लाइन पे बने रहे, मैं सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल सोना जी, आप ट्रांसफर कीजिए कॉल। Good evening, I'm Yasir speaking from Flipkart Senior.
Your good name, please. My name is Riyasat. What? Repeat again. Me is Riyasat Ali. Okay. So, am I audible to you? Hello. Hello. I am not. I am not getting your voice. Yeah. Okay. Okay. That's fine. Thanks. Actually, I have already told regarding the issue to your junior. Okay. So, I just want to know what you are going to help me right now. At current status, I know that you are confirmed about the situation. I hope your junior had given you all the situation. He informed me that the product has been recorded. Okay, I just want to tell you that today is my first birthday is there. Okay, and I am going to cut the cake. Okay, on her first birthday, and I have ordered one bicycle for the birthday gift. Okay, it was ordered around 2 weeks ago, and the delivery date was 9th of the August. Okay, and then again the delivery has extended on 12th of the August, and today is 12th of the August, and it was promised that by 7 p.m. we will deliver your product. Okay, so I hope that 9th has passed away. Okay, no issue, and 12th there is a birthday, so we will cut the cake, and by 7 p.m. the bicycle is going to reach, and then I can able to give her a surprise birthday gift on her first birthday. Now as I can see that I have got the message that sorry for the inconvenience, I will not able to deliver you that bicycle. Okay, and the bicycle will deliver by 13th of the August by 9 p.m. You got the update? Yeah. Not updated yet. I have got the message right now, just after half an hour ago. Okay. Really sorry for the delay. Actually, the shipment reached about 10. Would you please speak loudly? I think your microphone or something is away from you, so I am not able to hear properly. Please speak loudly. The shipment reached the nearest stop on 10th August only, but they should have delivered it yesterday itself. I wonder why it was not delivered even today. There must be some issue with the courier. The product is no more in transit. It has reached the nearest stop now. They should have delivered you the product, but due to some issues on the courier and you have not received the product till now. No, I just want to know whether the status which it is showing on the Flipkart, it is a right status, or that is only for blank status, or only for just to filling the data, or fill anything whatever e-logistic team or Flipkart want to do, or you just fill the data. Is that data has some value or accountability or nothing at all? As I can see, I can see that my product was in Bhagalpur, okay, from last 2 days. And from Bhagalpur to the delivery address, it takes maximum 2 hours. It's 2 hours, only 110 kilometers. And from last 2 days, it is kept there only. It is a type of train or anything, any ship I have ordered that for that. The e-logistic team needs some flood inside the Bihar, or they need some extra courier trucks. Some customs permission is required. No, not like that. The shipment is already at the nearest hub only. I can understand it is up to the nearest hub, but if it is not delivered at my address, then what is the benefit for the item is at the nearest hub? What is the benefit for that? I can understand that 9th was the date, as the promised date was there when I was ordered. I can understand that 1 day delay is okay, 2 day delay is okay, but what it is mean that it is delayed by 4 or 5 days? Then what is the, it is 4, 5 days, 9th and 13th, you can see 4 days is there. 9th was the date, you can see the first date. When I was ordered the bicycle, you see the delivery date. Yes. And now it is not delivered till now. Yes. Then no, it is going to deliver tomorrow because I have got the message that we will deliver you by the 13th of the August. Then it is already taken 4 days. Yes. We are actually taking the delay. I really understand that it's the birthday of your daughter and you want to give that to her. First, very happy birthday. Sir, how I can able to celebrate the birthday, sir? You can able to understand. You are. I hope you are a father, and your baby or baby boy or baby girl, whatever it is, and it was the first birthday. Being a human being, आप एक इंसान होने के नाते समझो कि right now I am talking on my roof, और मेरे नीचे पूरी फैमिली बैठी हुई है केक कट करने के लिए, and they are waiting that यार पापा क्या बर्थडे लेके आए, अपनी बेटी का पहला बर्थडे है. मैं सोचो कि मैं क्या मतलब सामने नीचे घर वाले को, मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने बच्चे को, पूरे छोटे बच्चे आए हुए हैं, फर्स्ट बर्थडे है, फैमिली के सारे मैंने सबको बुला लिया है. अब आप सोचो कि मेरे को कैसा फील हो रहा होगा अंदर में कि मैं अपनी बेटी के लिए पहला बर्थडे पे खाली हाथ बैठा हुआ हूँ. मैं क्या करूँ? मैं ये दिखाऊँ बेटा ये सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मैसेज आया है तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आई एम सॉरी बेटा. आप खुद एक पापा होने के नाते या आप खुद एक बेटा है तो सोचिए आपके पापा जब आपको फर्स्ट बर्थडे पे लाइफ का एक फोटो का एक सीन होता है ना सर, आप समझ रहे हो मैं कितना इमोशनली अभी अटैच हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. आप सोचो कि फर्स्ट बर्थडे पे कोई पापा किसी को देता है तो हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है. अभी मैं ये मैसेज दिखाऊंगा, देखो बेटी ये फ्लिपकार्ट से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आया है तुम्हारे लिए. आप समझो मैंने क्यों पहले ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे पता है फ्लिपकार्ट वालों का आदत, और इससे मैं रूबरू हूँ इन चीजों से. क्योंकि आप देख लो मेरा ऑर्डर, देखो आप ऑर्डर देख करके आपको समझ में आएगा. मैं पर ईयर अराउंड 1.5 लाख से ज्यादा का परचेज करता हूँ. यू कैन सी माई ऑर्डर हिस्ट्री. बिल्कुल वैल्यूएबल कस्टमर, इसमें कोई बात नहीं है. लेकिन फिर भी इस टाइप से अगर आप लोग इस टाइप से कस्टमर के साथ बिहेव करेंगे फ्लिपकार्ट वाले, तो क्या फायदा है सर और ई कॉमर्स का. तो शुक्र है कि आप लोग कोई मेडिसिन या कोई एसेंशियल कंपोनेंट डिलीवरी नहीं करते, अदरवाइज तो पेशेंट मर जाए. देखिए आप तो कुछ बोल नहीं सकते कि आप ऑलरेडी काफी. मैं भी जॉब करता हूँ, मैं क्यों गुस्से में हूँ? व्हाई आई एम टू मच फ्रस्ट्रेटेड. यू कैन अंडरस्टैंड द पेन इफ यू आर अ फादर.
और इफ यू आर अ सन, यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। इसलिए मुझे आदत पता है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द ऑर्डर प्रीवियसली, यार दे दो 4-5 दिन पहले दे दो, कोई भरोसा नहीं है फ्लिपकार्ट वालों का, 4 दिन 2 दिन 1 दिन डिले आएगा। मैंने इसलिए पहले कर दिया कि चलो यार 9 तारीख को आ जाएगा, 9 डिले भी होगा, 10 को आएगा, 10 डिले भी होगा, 11 को आएगा, 11 भी डिले होगा, तो चलो 12 को कम से कम आ जाएगा। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल वो समझ लिया है कि यार वो सरकारी वाला हाल नहीं होता, स्कूल का गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कॉल तो करेगा नहीं, कॉल करेगा तो बस बोल देना है कि यस वी हैव टेकन अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ई-कार्ड और व्हाटएवर द लॉजिस्टिक टीम यू हैव, दैट्स ऑल, पहुंच जाएगा सर। आई डोंट नो कैसे आप लोग इस टाइप के वेंडर को सेलेक्ट करते हैं जिसका कि एक वेंडर एवोल्यूशन तक नहीं होता है कि हाँ आप लोगों ने क्या आपका चार्जेस रहा है, क्या आप डिलीवरी का क्या आप लोगों का स्टेटस है, कितने घंटे के अंदर डिलीवरी करते हैं, किस टाइप से आप लोग वेंडर एवोल्यूशन करते हैं योर टॉप मैनेजमेंट, आई डोंट नो। कि कोई एक्शन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, नथिंग एट ऑल। कुछ केपीआई होता है सर, इवन यू आर डूइंग द जॉब, यू हैव सम टारगेट, यू हैव सम केआरए एंड केपीआई ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट? जी आप 100% राइट। आप खुद देख लो सर, अभी क्या है उस वेंडर का, क्या केपीआई है, क्या केआरए, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ पैसे कट जाए ना या कहीं कुछ हो जाए ट्रांजेक्शन तो उसमें भी 48 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन इसका क्या है, ई कार्ड वाले का कुछ नहीं, क्या पेनल्टी चार्ज किया आपने, कुछ नहीं, हु सफर, आपको पैसा मिल गया, फ्लिपकार्ट इज गॉट देयर पेमेंट, यस डन, लॉजिस्टिक टीम गॉट देयर शेयर, यस गॉट, सफर कौन कर रहा है, कस्टमर। आप खुद सोचो सर, एक ऑपरेशन का जब टाइमिंग आता है डॉक्टर के पास, वो टाइमिंग देता है, टाइमिंग से लैप्स हो जाता है, वो सीधा कहता है कि आप इसको लेट लेकर के आए थे, मैं इसको नहीं बचा सकता हूँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। आप ऑफिस 10 मिनट लेट आते होंगे, आपकी पंचिंग वो हो जाती होगी तो वो हाफ डे लग जाता होगा सर। आप सोचो कि यह क्या हाल है इस लॉजिस्टिक वाले का, 1 दिन 2 दिन नहीं 4-4 दिन डिले है। क्या पेनल्टी चार्ज है, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है, बस एक कंप्लेन होगा, वो डिलीवरी कर देगा, कंप्लेन रिजॉल्व हो जाएगा, दैट्स ऑल, यस वी हैव डिलीवर्ड, एक फोटो डाल देंगे था मैंने डिलीवर कर दिया, खत्म कहानी। सफर कौन किया, कस्टमर सफर किया ना। क्या है कस्टमर के लिए सर, कुछ कस्टमर के लिए कुछ है, फ्लिपकार्ट के लिए कुछ भी नहीं है। एक होता है कि चलो मन में एक दर्द होता है कि यार चलो कस्टमर को दिक्कत हुआ, यार ये इतना अच्छा प्रीमियम मेंबर था, चलो मैंने इसको कुछ ऑफर दे दिया, मैंने इसको कुछ गिफ्टेड कर दिया, मैंने इसको कुछ ये कर दिया कि हाँ चलो यार यस ही हैड सफर्ड अ लॉट। अभी आप खुद सोचो कि कैसा लग रहा होगा अगर आप ऑफिस से घर जाते हो। सर आई एम टेकिंग इट पर्सनली बिकॉज व्हाट पेन आई एम गेटिंग राइट नाउ ना, एवरीवन शुड एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर डूइंग द सेम जॉब, सेम प्लेटफॉर्म, एवरीवन हैव टू अंडरस्टैंड। या कोई प्रॉमिस डेट या कोई डिलीवरी डेट देता है ना तो वहां पे पहुंचना चाहिए। आपको भी पता है कि आप अगर अभी कंप्लेन भी लोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना तो वो वेंडर ब्लैकलिस्ट होगा, ना वो वेंडर से कोई पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सर। मैंने एक साइकिल ऑर्डर किया था ना, कितना होता है, एक छोटा सा आपका टेम्पो ट्रेवलर में डाल करके वो साइकिल डिलीवर हो सकता है, लेकिन पता है क्या, दे आर वेटिंग यार इस एरिया के लिए ना बहुत सारा सामान आना चाहिए ताकि जो पेट्रोल और ये सब का खर्चा है ना वो बच सके। एक सिंगल मटेरियल में डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ, ये है इशू। और ये इशू अगर आप महिंद्रा लॉजिस्टिक या और लेंगे ना तो वी आर नॉट फेसिंग बिकॉज दे आर प्रीमियम लॉजिस्टिक, दे यूज टू डिलीवर। मैं फार्मेसी यूज करता हूँ, अमेजन यूज करता हूँ, जो प्रॉमिस डेट होता है उसी दिन वो डिलीवरी करता है बिकॉज दे नो द क्वालिटी एंड दे नो द वैल्यू ऑफ द कस्टमर। लेकिन ये तो फ्लिपकार्ट सरकारी हाल जैसा है, हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कोई फोन करने वाला नहीं है, कोई कस्टमर में है ही नहीं। आप बताओ मेरे को भी, आप कैसे कंपनसेट करोगे इसको सर, आप मुझे खुद बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू कंपनसेट दिस टाइप ऑफ इशू। अगर आप सीनियर है तो आप सीनियर को ट्रांसफर करो कॉल सर, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन वेरी पेनफुल पोजीशन एंड आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फ्लिपकार्ट। आप सीनियर को ट्रांसफर करो कॉल सर प्लीज। मैं सीनियर ही बात कर रहा हूँ सर तो समवन इज देयर ना अपॉन यू, कोई तो होंगे ना आपके ऊपर, और ये बस छोटा सा प्रॉब्लम है दैट अप टू योर लेवल इट इज गोइंग टू रिजॉल्व सर। इसके ऊपर कॉल ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो फिर सर आप मुझे बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू कंपनसेट लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। एम आई रॉन्ग सर, एम आई रॉन्ग, आप बताओ। बीइंग अ कस्टमर आप क्या सोचो, क्या मैं गलत हूँ? 9 तारीख समझ में आती है सर, 10, 11, 12 तक समझ में आता है सर। मैं फेथ था, होप था ना कि 12 को मैसेज आया कि चलो भाई शाम को 7 बजे तक, दैट्स व्हाई आई हैव डिलेड माय ऑल एंटायर प्रोग्राम। मैंने केक कटिंग, खाना पीना, मेहमान सबको डिले कर दिया 2 घंटे के लिए। एवरीवन इज वेटिंग, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वो बाहर में केक कटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, दे ऑल आर हंग्री, कब केक कट होगा, कब केक होगा। अभी मैं कहाँ जाऊँ दुकान में, कहाँ से मैं साइकिल ढूंढ के लाऊं, सेम साइकिल या सेम चीज अभी किस दुकान को मैं खुलवाऊं, आप मुझे बताओ। आज भी आप देखोगे, देखो आज भी मैं ऑर्डर किया हूँ, इट्स अ वॉच 6000 का मैं आज भी वॉच ऑर्डर किया हूँ। इससे पहले देखो 34,000 के मोबाइल ऑर्डर कर रहा हूँ, टीवी ऑर्डर कर रहा हूँ, कितने कितने छोटे छोटे प्रोडक्ट है। आप देखो, आप अगर सेरेलैक देखोगे ना, इट इज अराउंड 50 to 30,000 का, तो मैं सेरेलैक ऑर्डर किया हूँ फ्लिपकार्ट से। कुछ तो इंसानियत बचनी चाहिए सर। वी आर द पर्सन हु आर गिविंग अ वैल्यू, वी आर प्रोवाइडिंग द फंड्स टू द फ्लिपकार्ट, जिसके बदौलत फ्लिपकार्ट चल रहा है सर। और कस्टमर की मतलब जहां से इनकम आ रही है वैसे उसी बंदे की वो कर दो, जिंदगी हराम कर दो। आप मुझे बताओ सर, हाउ यू आर गोइंग टू कंपनसेट ऑन दिस इशू। यू आर द ऑनर, बिकॉज अभी आप मेरे लिए फ्लिपकार्ट के सुपीरियर हो सर, बिकॉज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो एज पर माई, विदाउट गोइंग टू द कंज्यूमर और वट एवर आई हैव RTI, मैं विदाउट, या राइट नाउ यू आर सुपीरियर। हाउ यू आर गोइंग टू कंपनसेट दिस इशू सर। 1 मिनट दीजिए आप। या प्लीज, आई एम, यू कैन टेक 1 मिनट नहीं सर, आप 2 मिनट ले लो, क्योंकि मेरा आज का तो दिन खराब हो गया सर। आप 2 मिनट ले लो सर, रख लो मुझे लाइन पे, नो इशू।
जी लाइन से बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी सर बताइए। मैं चेक कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग कि आपकी ये शिपमेंट सफर या नेक्स्ट वर्किंग डे डिलीवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब तो देखो सर, आप समझने की कोशिश करो, वो तो डिलीवर तो होगा ही सर, वो तो मुझे भी पता है कि वो डिलीवर होगा सर, मैं तो मुझे भी पता है सर, एक ना एक दिन तो उसको आना ही है। नेक्स्ट वर्किंग डे पे नेक्स्ट वर्किंग सर कोशिश देखिए सर, अभी भी आप एश्योरिटी नहीं ले रहे हो सर, आप भी कह रहे हैं अभी कोशिश की जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड योर वर्ड सर, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टिल नॉट कंफर्म कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, बिकॉज आपके वर्ड में प्रोबेबिलिटी है सर, एश्योरिटी नहीं है सर, बिकॉज यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिस्टिक टीम कि करेगा कि नहीं करेगा। मैं वही कह रहा हूँ सर, जब आप श्योर नहीं हो सर, हाउ आई कैन गेट श्योर। और अभी जो ये इशू हुआ सर, जो मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, एक तरह से तो मेरी मानहानि हो रही है ना सर। तो हाउ फ्लिपकार्ट इज गोइंग टू कंपनसेट दिस टाइप ऑफ इशू सर, मैं वही जानना चाहता हूँ। जी आप चाहे तो ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर की डिलीवरी नहीं, ऑर्डर कैंसिल करके क्या होगा सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। हेलो हेलो सॉरी सर, आप ऑडिबल नहीं हो, आई एम नॉट एबल टू लिसन योर वॉइस। हेलो सर, आप सुन पा रहे हो या आपने कॉल रख दिया सर? सर अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज कॉल मी बैक।